तो वो एक मजलूम है जिसको उसका मर्द हर वक्त थपड़े मार सकता है. प्लीज स्टॉप प्रमोटिंग द वुमन एज अ बेचारी, रोने धोने वाली के बच्चा जो है उसका काम कमाना नहीं है. मेरे लिए पैसे कमाना अल्हम्दुलिल्लाह हैज नेवर बीन एन इशू. जब मैंने काम शुरू किया था, यस, उस वक्त मुझे भी खुद भी नहीं पता था कि यू नो व्हाट इज फैशन डिजाइनर इज एक्चुअली अ प्रोफेशन. Dynamic, Haseen, and somebody who has, I told her a little while ago, she hasn't aged at all. Extremely talented. I have the pleasure of having Shayan Malik in the studios with me. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are Thank you? I'm fine and I'm very happy with the introduction you gave. You made my day. कि आपका ब्रांड जो है समनजार. जी. So मतलब एक तुक्का तो गेस होता है लोगों का, अच्छा फैमिली रिलेटेड कोई नाम होगा, बट व्हाई पर्टिकुलरली समनजार? Saman is my daughter and Zadmand is my son. So I joined the two names together and Saman means चंबेली का फूल. जी बिल्कुल. और जब आप समनजार कहते हैं तो it means the garden of चंबेली का फूल. गार्डन ऑफ चंबेली का. तो शायद हमारी बात हो रही थी कि आपने जब इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया था तो ये इंडस्ट्री उस वक्त नहीं थी. यू आर वन ऑफ द पीपल जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री कायम हुई है, बनी है. तब से लेके अब तक का सफर, आई एम श्योर इट्स बीन rewarding also, but I'm sure it's been very painstaking also because it's not easy pursuing your passion. So आप क्या बताना चाहेंगे अपने जर्नी के बारे में as a woman entrepreneur? मेरे ख्याल में the journey has been quite long and eventful journey because frankly speaking जब मैंने काम शुरू किया था, yes, उस वक्त मुझे भी खुद भी नहीं पता था कि you know what is fashion designer is actually a profession. So I started at a very young age, right? And I started my career after I got married actually. अच्छा, okay. Because basically I'm from Lahore and अच्छा. I moved to Karachi. So मेरा तो I was always into painting and art and I wanted that to go to NCA. Right. Lekin I couldn't pursue that. So coming to Karachi, I started painting anyway at home, and then it grew. The business grew from there. I was pursuing a law career. Wow. But my passion was always art. Right. So I started, and I used to just paint at home, and then I used to paint like my mother-in-law's sarees, and her friends liked it, so I used to paint for them. And then I got a karigar, and he would just put in little sequences and all, and that's how my career started. And then I started earning money for it. So really, entrepreneurship is all about that. When you have a passion and you start making that passion a business, that is the way that things go ahead, because then you're always going for the next step and the next step and the next step. So फिर I got the youth एक GIPS loan होता था for youth under 21 and Okay. I applied for that loan. I got अच्छा. it. I opened my first shop in Clifton, which is opposite Motas. वहाँ पे मेरी छोटी सी एक टेलरिंग शॉप थी. Okay. और 1-2 साल के बाद वो टेलरिंग शॉप को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और उसको बुटीक बनाया. And that's when you see, so it was a progression. बिल्कुल. And बस that's how things started. started. तो बहुत ट्रैवल भी कर चुकी हैं, एग्जिबिट भी कर चुकी हैं, फैशन शोज का हिस्सा भी बन चुकी हैं. So that means that you wanted to really scale it up. जब शुरुआत की थी तब शायद ये माइंडसेट नहीं था, लेकिन आगे फिर आप बढ़ना शुरू हुई. So how and why did that happen? देखिए, जब मैंने शुरू किया था ऐसे था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज इस तरह की मिली थी. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. सिर्फ ये है कि उस वक्त आपने उस अपॉर्चुनिटी को ले लेना है. एंड यू नो आई ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी व्हिच आई गॉट.
My first fashion show abroad was, I think, in Indonesia. अच्छा Somebody offered me कि जी आप एक group लेके आ सकती है Indonesia. We're doing the opening of this restaurant and we are doing a food festival. एक show के बाद there was no looking back. उसके बाद I was invited all over the world. हम लोग फिर मैंने अपने fashion को एक कल्चरल प्रमोशन ऑफ आवर कंट्री बना दिया. के सकाफत को प्रमोट करना बिल्कुल, जरूरी है. बिकॉज आपको बताना है, बिकॉज जब आप बाहर जाते हैं तो लोग इतने हैरान होते हैं, ये पाकिस्तान है, ये आपके ऐसे कपड़े होते हैं, ये होता है, यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, एंड एक्चुअली वी डू. और मेरा फैशन हमेशा हैज ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय माय हेरिटेज, इंस्पायर्ड बाय माय कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख से आपने मैंने एक्सट्रैक्शन हमेशा, because I started out as a bridal wear designer, I never actually did Pret before, pret yeah. ever, so I'm not good at it as well, I will frankly say. But so I've always been into bridals, I've always been into craft. I have always revived our craft. जैसे पहले था 200 साल पहले के एम्ब्रॉयडरी पीसेस को रिवाइव किया. आई वाज सो लकी टू वर्क विद द बेस्ट आर्टिजन्स. उनसे मैंने बहुत सीखा क्योंकि उन्होंने अपना क्राफ्ट फिर बाकी जो लोग मेरे पास कारीगर काम करते थे उनको सिखाया. तो ये जो सीखने का एक था उसको कभी हमने रोका नहीं, क्योंकि वो जो आर्टिजन्स थे उन्होंने यंगर आर्टिजन्स को सिखाया. यंगर आर्टिजन्स, अब कहते हुए मैं कभी सोचती हूँ 30 साल से ज़्यादा का सफ़र है. सो उसके बाद जब मैंने रूरल औरतों के साथ काम करना शुरू किया, it was such a great learning for me and for everyone who was in the project, because rural और urban का इतना अच्छा amalgamation था. तो उसके अंदर ये था कि मेरे कारीगर यहाँ से ट्रैवल करते थे. We did a project in रहीम यार खान in डेरा जट्टा, small village between भावलपुर and रहीम यार खान. अच्छा. तो वहाँ की हमने कोई 100 औरतों को ट्रेनिंग दी. Wow. और मेरे कारीगर became master साहब and sir, and it was, I think, one of the most proud moments for me, and it was a proud moment for my कारीगर, because they realized what their craft, how important their craft is and what they actually have. ये जो हुनर है ना, और फिर इस हुनर को आगे देना और people ऐसी औरतों के साथ काम करना, यंग women from the village who never had the exposure. और फिर वो जो खवातीन थी उन्होंने जाके अपने बिजनेसेस शुरू कर दिए. और उनका फेसबुक पेज है, और ये चीज़ मेरे करियर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. दिस वाज अ कैस्केडिंग इफेक्ट कि आपने एक चीज़ की शुरुआत की, उसको एक्सपैंड की. आपकी नीयत ये थी कि आपने पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करना है. फिर जो हेरिटेज थी इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट के, whether it was zari or any other kind of particular embroidery, zardozi that you wanted to bring forward, उसको आप लेके आए और उन्हीं लोगों के जरिए लेके आए जो इनकी महारत रखते हैं. उसके बाद इसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये था कि उन्होंने आगे और लोगों को सिखाया जिनको ना सिर्फ आमदनी कमाने का मौका मिला, but एक sense of self and confidence, which is fantastic. So आपका intent, that means हमेशा से कभी भी तो लिमिटेड नहीं था कि जी मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनूंगी and I'm going to earn just loads and loads of bundles of money. I think your intent was that I need to take this to a scale where other people benefit, right? बिल्कुल. असल में मेरा पैशन है ना इस तरह की चीज़ें. मेरे लिए पैसे कमाना अल्हम्दुलिल्लाह has never been an issue. Because I'm taken care of. Right. Like I don't really need to do it to earn money, and I don't need to support my family. Because my husband माशाल्लाह has been always doing it. तो वो support जब आपको मिलती है तो फिर आपकी growth इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अपने बाकी passions को pursue कर सकते हैं without any worries. Because I know, because I've worked so much with women, मुझे पता है
women have so many issues. They need to support their families, they have to educate their children, और उनके लिए मैं ज़्यादा काम करती हूँ बिल्कुल because मुझे लगता है कि ये बहुत important है. So working with rural women has been also an eye opener. I started in Punjab and I've ended in Tharparkar. तो across the board इतनी diversity है craft के अंदर, लेकिन at the end of the day women everywhere are all the same. Their needs are the same, their passions are the same, the care for their family is the same. किसी का वो फर्क नहीं है. वही ख्वाब हैं, वही ख्वाहिशात हैं, वही जिम्मेदारियां हैं. But very honestly बताइए, that as a woman, even though you belonged to, I'm assuming you belonged to that segment of society जहाँ शायद इतनी रुकावट ना हो, लेकिन फिर भी I'm sure there were a lot of roadblocks on the way कि लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या सवाल ज़्यादा करते हैं, या सुनते नहीं हैं, या मर्द कारीगरों से काम करवाने में मुश्किल हो. इस तरह के कोई चैलेंजेस कभी आए आपको सामने? मैंने अपनी जर्नी के अंदर मैं आपको सेफली बता सकती हूँ कि ज़्यादा रुकावटें ख़वातीन के लिए बनाती हैं. Agree. मर्दों का इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा हाथ नहीं होता. हाँ, ज़रूर ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को काम नहीं करने देते, या अपनी बीवियों को अपना पैशन नहीं एक्सप्लोर करने देते, बिकॉज दे फील दैट वुमेन्स रोल इज़ इन द हाउस. एज लॉन्ग एज द मैन इज़ प्रोवाइडिंग फॉर हर, इट्स ओके, बिकॉज ये एक आपस का एक रिश्ता होता है, आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इट इज़ फाइन. जहाँ तक जिस तरह हमारे जब मैंने औरतों को जरदोज़ी का काम सिखाना शुरू किया, जब हम गांव में गए, तो आई रिमेम्बर दैट उस वक़्त वन ऑफ द डिज़ाइनर्स, अ वेरी prominent designer, right, bridal wear designer, right, said to me that women do not do zardozi. Achha. And for me that was a challenge, because I was going to teach women to do zardozi. एक ठप्पा पहले से लगा. हाँ, पहले से लगा हुआ था कि ये औरतें कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती, और ट्रेडिशन 200 सालों से चल रही है कि मर्द करते हैं अच्छी जरदोजी का काम. लेकिन ऐसा है नहीं. बहुत सारी औरतें अपने छोटे छोटे घरों में, कुरंगी में बेस्ड भी हैं, जहाँ पे अड्डे लगे हुए हैं और औरतें काम करती हैं. सो ये एक सॉर्ट ऑफ परसेप्शन थी. और फिर आवर वुमेन वेंट ऑन टू एक्चुअली डू द वर्क एंड टू स्टार्ट अर्निंग. तो मैं ये एक छोटी सी सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ दैट शी वुड नॉट बाय देयर वर्क बिकॉज शी फेल्ट दैट दे वर वुमेन एंड देन दे कांट डू इट एज वेल एज हर मेन कारीगर. So because मेरा ये भी काम बहुत होता है linkages. I go to all the designers and I tell them कि जी यहाँ पे ये काम हो रहा है, आप इनसे लें. Yeah. So Tharparkar में many of our designers have now gone to Tharparkar and they are working with the women over there, because main मेरा काम है to promote women and their craft and give a linkage to the rural woman and the urban designers. So because उससे फिर उनका काम बढ़ता है, आगे चलता है, उनका काम बढ़ता है. तो ये अच्छा, टेक्निकली क्या इसमें कोई सच्चाई थी कि जरदोजी मुश्किल होती है काम करने के लिए? देखिए, जो आदमी काम कर रहे होते हैं जरदोजी में, जो कारीगर काम कर रहे होते हैं जरदोजी, उन्होंने बहुत मतलब एक ट्रेडिशन चला आ रहा है. इंडिया से ये कारीगर पाकिस्तान आए, और पार्टीशन के ज़माने में सारे मुसलमान कारीगर थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने ये क्राफ्ट को बढ़ाया. और आज भी अगर आप पाकिस्तान की जरदोजी देखेंगे और इंडिया की जरदोजी देखेंगे तो उसमें कोई मुकाबला नहीं है. हमारे कारीगर बहुत ही उम्दा काम करते हैं. हैविंग सेड दैट, ज़रूरी नहीं है कि हर जो एवरीबडी रिक्वायर्स कि वो बिल्कुल बारीकी का काम, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट.
बिल्कुल that is an art form which it's like people are collectors, और वो जो collectors होते हैं वो तो वो खरीद लेते हैं, शॉल खरीद लेते हैं, या कश्मीरी टांका होता है, या they are collector items. And sometimes people do spend a lot of money in their bridal outfits, but then there are more girls and women getting married who can't afford that and would like to look as good and as beautiful. And I feel that we must give them across the board that market where you can buy anything for any price that you can afford. ये बहुत ज़रूरी है. सो ये कहना कि नहीं सिर्फ ये करना है वो करना है, वो मैं इतना ज़्यादा उसके अंदर बिलीव नहीं करती हूँ. मैं मेरा ख्याल है कि क्रिएटिव रहते हुए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप अपने क्लाइंट्स को केटर भी कर रहे हैं और आप अच्छी चीज़ बना प्रेजेंट कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसको मेंशन किया थोड़ी देर पहले, समथिंग अबाउट वर्किंग विद स्ट्रीट चिल्ड्रन. वो क्या प्लान है आपका? So basically, coming to the street children, that is my another passion of mine, because I feel that someone has to do something for street children, and it's been so many years Pakistan has been made, and we are going and we see children on the roads all the time, and people, they're cleaning your cars. And people are not bothered to know where did these children come from, who they are, and why are they here when they should be in school. If you see a well-dressed child roaming around on the street cleaning a car, you will question it. So why don't you question it when you see a little child who's not well-dressed and you think, acha, he's poor, so it's okay if he's poor. This is the work that he has to do, because so I'll give him 100 rupees. But it's not like that. You give him 100 rupees and you are promoting that industry where children are abused and used they're like little slaves, and they're used to beg for the person at the back, the handler, to have a really comfortable empire going at the back. मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे माशरे में हम सबके ये पट्टियां बंधी हैं, हमारी आंखों में हमें नजर नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. तो मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसके अंदर बहुत लोग हैं पैशनेट और जो कि मेरे इस मूवमेंट का हिस्सा बने. अच्छा, ठीक है. So we have a foundation and it's called Save Our Children Foundation. And now we've come to a very हमारा इस वक्त सिंध पुलिस के साथ हमारा बहुत काम है. एंड मैं आपको बताऊं कि इतने सिंसियर लोगों से मैं वहाँ पे भी मिली हूँ जो चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, और हम बेसिकली हमें अपने सिस्टम्स को सही करना है कि बच्चा जो है उसका काम कमाना नहीं है. बच्चा जो है उसका काम है टू लर्न. उसको स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है. इतने बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल, हम सोच भी नहीं सकते उनकी तादाद. उनको स्कूल में जाना है और उनको उनका बचपना हमें वापस देना है, और ये सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. चाहे आप एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करें, आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. 45% चिल्ड्रन आफ्टर क्लास 5 आर आउट ऑफ स्कूल. सोचिए आप उन लोगों को मिला के, उन बच्चों को मिला के जो कि स्कूल या जाते नहीं है या 5वीं जमात के बाद घर बिठा दिया जाए. 45%. हम ये करते हैं कि जो बड़े बच्चे हो जाते हैं जो स्कूल जाने के काबिल नहीं होते, बिकॉज जब आप 12-13 साल के हो जाते हैं तो उनको थोड़ी सी आप पढ़ाना शुरू करें, लेकिन दायरा है वो उस लेवल पे नहीं आते, उनको बिल्कुल बेसिक से शुरू करें. लेकिन हम उसके अंदर ये करते हैं कि वी डू वोकेशनल ट्रेनिंग्स. वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवन हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये होता है कि नॉट वाई वी हैव विमेन एंटरप्रेन्योर्स इज बिकॉज नॉट एवरीवन इज गोइंग टू गेट अ जॉब. अब हमारा ये टाइम आ गया कि सब ने अपना छोटा बिजनेस शुरू करना लाजमी है. सो आई वर्क विद द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन बफर जोन विमेन. और वहाँ पे हमारे बहुत सारे लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं जो कि डिफरेंट ट्रेड सीख रही हैं. कोई हेयर ड्रेसिंग में है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में है, कंप्यूटर्स में है, और इन सब को हम वो ट्रेनिंग्स देते हैं कि ये अपना बिजनेस शुरू कर सकें. कल औरत मार्च भी है, द वेरी कंट्रोवर्शियल बट आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट औरत मार्च. उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे?
मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई सपोर्ट इट बिकॉज अ वुमन हैज़ द राइट टू डू एज शी विशेस एंड आई डोंट फील के मर्द का हक है कि उसको रोके किसी चीज़ से। और जो औरतें मार्च करेंगी वो बहुत सारे अपनी डिफरेंट वजूहात से मार्च करेंगी। एक स्लोगन लेके हमने उस स्लोगन को इतना बतंगड़ बना दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक आई मार्च, देयर इज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑन फेसबुक जो चल रहा है, आई मार्च फॉर दैट लिटिल girl who the little 6-year-old girl, the little 6-year-old beggar girl who is drugged and in the lap of a 60-year-old man and being used to beg. I will march for her. I will march for all abused little girls, all raped little girls. I will march for Zainab. ये मेरी राइट है टू मार्च। और मुझे नहीं लगता कि मर्दों को इसके बारे में कुछ कहने का भी हक है, इसलिए क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें एक ये हक चाहिए या वो हक चाहिए, ये औरतों की राइट है। तो मेरे ख्याल में 52% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज women and we need to promote them in every way possible. The very controversial but I think the very important औरत मार्च, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई सपोर्ट इट बिकॉज अ वुमन हैज़ द राइट टू डू एज शी विशेस एंड आई डोंट फील के मर्द का हक है कि उसको रोके किसी चीज़ से। और जो औरतें मार्च करेंगी वो बहुत सारे अपनी डिफरेंट वजूहात से मार्च करेंगी। एक स्लोगन लेके हमने उस स्लोगन को इतना बतंगड़ बना दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक आई मार्च, देयर इज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑन फेसबुक जो चल रहा है, आई मार्च फॉर दैट लिटिल girl who the little 6-year-old girl, the little 6-year-old beggar girl who is drugged and in the lap of a 60-year-old man and being used to beg. I will march for her. I will march for all abused little girls, all raped little girls. I will march for Zainab. ये मेरी राइट है टू मार्च। और मुझे नहीं लगता कि मर्दों को इसके बारे में कुछ कहने का भी हक है, इसलिए क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ रहा है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें एक ये हक चाहिए या वो हक चाहिए, ये औरतों की राइट है। तो मेरे ख्याल में 52% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज women and we need to promote them in every way possible. और आप चूँकि इतनी माशाल्लाह एक अकॉम्प्लिश्ड खातून है जिन्होंने इतने मल्टीपल स्फीयर्स में काम किया और वो भी सोसाइटी को इतना फ़ायदा हो रहा है आप जैसी एंटरप्रेन्योर्स की प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, व्हाट्स वन मैसेज टू एस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो आप देना चाहेंगे? मैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपका ड्रीम है, आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। आप काम करना शुरू करें, बस आप हिम्मत रखें, दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। That's a very beautiful message. ये ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स कायम रखें और जो आप करना चाहते हैं आप करें। और लेकिन जब आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाए तो ये ना भूलिए कि आपको अपनी बाकी ख़वातीन को भी साथ रख के चलना चाहिए। जब आप एक लेवल पे आ जाएं तो फिर आप उस लेवल का सोचते हुए डू समथिंग फॉर योर पीपल अराउंड यू, द विमेन अराउंड यू। आप उनके लिए भी उनको अपने साथ लेके चलें बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। और मेरे ख्याल में, एंड आई हैव वन लास्ट मैसेज एंड आई हैव अ मैसेज फॉर आवर मीडिया, प्लीज स्टॉप promoting the woman as a बेचारी, रोने धोने वाली बेचारी जिसको हर कदम पे या तो वो एक मजलूम है जिसको उसका मर्द हर वक्त थप्पड़े मार सकता है, और या तो वो एक बुरी औरत है जो कि अफेयर्स चला रही है। मेरे ख्याल में हमारे मीडिया का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्लीज़ stop putting women in a mold which actually Pakistan is not all about. Stop sharing this wrong image and start refining our country, हमारी सोच, हमारा कल्चर। कहाँ गए हसीना मोइन वाले प्लेस? हमें इस तरह की और राइटर्स चाहिए।